Hello students, good morning to all of you. Class representative informed to the student they must have to attend the class, and today we will be cover some topic, and today we will study about the interfacing of the ICs with an Arduino. So we will study about how an IC could be interfaced with the Arduino, and we will control to those switching using Arduino input and output interfacing. Okay, so the ICs will be covered: L293D motor driver IC, we will cover to that, as well as we will cover ULN2003 relay driver IC, and we will cover today the interfacing of the LM358 IC and the switching of the ULN2003 IC. तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा वो है आपका L293D IC, हम लोग पढ़ेंगे मोटर ड्राइवर IC, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड about the ICs in previous lecture. Those students who didn't studied about the L293D as ULN2003, they must have to see the previous lectures also. And I have explained about the LM358 comparator IC, and you could see there the LM358 comparator IC will be exactly for switching for input side. And now we are going to control to ULN2003 using the LM358 IC as well as Arduino will switching. So today we have to discuss and we have to gather for the conjunction and compilation of the input, output and processing. So today you will see here how an IC could be occur inside of the input and how processing could be occur and how the output will act for the switching different ICs. Okay बेटा, so we should have to proceed. तो सबसे पहले हम लोग L293D देखते हैं. तो L293D देखने से पहले आपको H ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी पता है, सारी चीज़ें हम ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं. तो अब हम लोग डायरेक्टली स्कीमेटिक पर आते हैं. तो आप देखें यहाँ पर जैसे हमने कहा यहाँ पर आप एक ATmega 328P कंट्रोलर यूज़ कर देते हैं. यू शुड हैव टू यूज़ हियर ATmega 3208P controller. Suppose this one is ATmega 3208P here. Now we have to attach 1 2 3 4, and I will attach here an IC L293D. You know very well L293D requires 4 input, so we have to structured here an IC L293D motor driver IC. We say 1 number 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So we will write here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. One number should be connected diagonally to the 9 number, and it's going to the enable plus en. Okay, and it's going to connect with the 5 volt. 16 number will be connected to the 8 number, and that's going to the VCC. It's going to the 9 volt. This is 8 number, 9 number, 10 number and 11 number. So the input of the this one is going to the 11 number, and this will go to the 7 number. It's an input. This is going to connect for the motor number 1, and it's going to connect, will connect it to the ground. As well as we will here do this one, we have to go this side to the input 1, we will go this side for the input here. So we could say that 8 number, 9 number, 10 number and 11 number is connected here. And now this is going to the motor number 2 is here, and it's going to short and going to the ground, and it is so short and going to the ground. तो ये चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की. अब हमें क्या करना है, सिंपली आप देखें. अब सिंपल सी बात है, इस पर हमने कनेक्शन बना दिए हैं. अब इस पर हमें कनेक्शन बनाने होंगे, तो हम यहाँ पर लॉजिक स्टेट ले रहे हैं बेटा. क्या ले रहे हैं? लॉजिक स्टेट. तो हम यहाँ पर एक लॉजिक स्टेट ले रहे हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट हियर द लॉजिक स्टेट.
तो यहाँ पर कह देंगे, मान के चलिए हम 12 नंबर एंड एक लॉजिक स्टेट हम कनेक्ट करा रहे हैं 13 नंबर पर। तो 12 नंबर एंड 13 नंबर यू कुड सी हियर दैट विल बी द अकम्प्लिश टू दैट। तो अब आप देखें यहाँ पर हमें किस तरीके से कनेक्शन बनाने हैं। तो हम कहेंगे इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, आउटपुट नंबर 1, आउटपुट नंबर 2, आउटपुट नंबर 3 and output number 4. We are categorized to this pin. Now you could see how could you define. सिर्फ हमारा एल्गोरिथम इतना है बेटा कि जब हम you could see that the algorithm there is the 4 input number 1, input number 2, input number output, sorry, this are output, and suppose this is input number 1, input number 2, and that will output number 1, output number 2, output number 3 and output number 4. These are what? Sensor. These two are what? These two are output यानी मोटर नंबर 1 and these are what? Output, that is मोटर नंबर 2. तो ये चीज़ें हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिंपल सा 0 0 0 1 1 0 1 1। हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशन ये रहे कि अगर 0 0 हो तो मोटर 1 आपकी क्या होनी चाहिए, ये भी 0 हो, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो। अगर आप 1 कहें तो ये 1 0 हो लेकिन ये 0 0 हो। आप इसे 1 कहें तो ये दोनों 0 0 हों, ये 1 0 हो। और जब 1 1 कह दें तो 1 0 एंड 1 0 हो। तो ये हमने एल्गोरिथम कर दी। क्यों? क्योंकि अब ये चीज़ बताएगी क्लॉकवाइज, ये स्टॉप है तो इट्स स्टेट फॉर दिस वन। अब इसी के अकॉर्डिंगली हमें इनके प्रोग्राम को करना है। नाउ वी हैव टू डिसाइडेड द प्रोग्राम फॉर दिस वन, और आप इसी के अकॉर्डिंगली यू विल जस्ट राइट द कोड। तो आप इसके अकॉर्डिंगली कोड को राइट करेंगे। तो देखें यहाँ पर इनपुट को पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम कहेंगे इंटीजर टाइप इनपुट नंबर 1, इंटीजर टाइप इनपुट नंबर 1 is going to initialize to the 12 number. Integer type input number 2 is going to initialize to the 13 number. After that you could see here the variables are output number 1, 2, 3 and 4. हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट नंबर जो आपका आउटपुट नंबर 1 है वो कनेक्ट हो रहा है किससे बेटा, इट्स गोइंग टू कनेक्ट with 8 number pin is 8 number. Input number O2 is going to connect with the 9 number. Input number O3 is going to connect with the 10 number. Input number O4 is going to connect with the 11 number. तो जिन पिनों पर ये कनेक्टेड हैं उन पिनों को हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं कि इंटीजर टाइप। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, यू टू राइट हियर void setup. What should have to write here? We have to write here void setup. अब यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, now we have to write here okay, now we'll write here the pin mode. So it will be the pin mode. 12 number is an input. You could see here pin mode. 13 number is acting as an input. After that if you say that pin mode 8 number as an output, pin mode 9 number as an output, pin mode 10 number as an output, you could say. As well as we have decided here pin mode 11 number as an output. Now close this one. If you will emphasize to this on the basis of our, you could see here we have to decided the which one is the pin input and which pin is an output. Now we have to
just set the code with the condition. So we have to write here the condition, and you have studied in previous lecture how could you just configure to the multiple inputs. So you should have to just write here how could you define. तो हम लोग लिखेंगे condition if digital read कौन सा बेटा, if digital read, अब कौन सी पिन यहाँ पर इनपुट दे रही है 12 नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना इनपुट किस पर लगी हुई है बेटा, 12 नंबर पर लगा हुआ है I1। तो हम कहेंगे यहाँ पर इफ़ इन डिजिटल रीड I1 इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखेंगे, इक्वल टू लो, यानी लो हो जाती है। एंड आप लिख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल रीड input number 2 must be equal to low। okay, now what should have to do, हमको करना होगा यहाँ पर digital write, you should have to write here digital write, यानी इस कंडीशन में सारे आउटपुट क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो डिजिटल राइट आपके 8 नंबर पिन शुड बी लो, डिजिटल राइट 9 नंबर पिन शुड बी लो, as well as digital write 10 number should be what, low, as well as digital write 11 number pin is low। तो ये सारी पिनों को हम लोग क्या रख दे रहे हैं, लो कर दे रहे हैं, और इसे क्या करेंगे, इफ ये कंडीशन को क्लोज कर देंगे। नाउ वी हैव टू डिसाइडेड टू द नेक्स्ट कंडीशन ऑफ द कोड, this one, this had been completed, now we have to switch this one। तो आप क्या कहेंगे, if digital read sensor number 1 is equal to what, sensor number 1 is equal to 0 and digital read sensor number 2 is equal to sensor number 2, that means it is an input number 1 and it is an input number 2 is equal to what, high, that is high। you could see here it's an high। तो अगर ये हाई हो जाती 1 लिखें या लो लिखें 0 लिखें, इट्स मोस्ट नो डिफरेंस, सो यू शुड हैव टू राइट हियर हाई। नेक्स्ट कोड में हम यहाँ पर आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में और डिजिटल इनपुट आउटपुट के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल रीड I1 इक्वल समथिंग एंड डिजिटल रीड I2 इक्वल टू हाई। आफ्टर दैट वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट मेक दिस वन, ये आप ओपन करेंगे पैरेंथेसिस और इसमें क्या कह रहे हैं 1000, दैट मीन्स कि ये आपका कौन सा नंबर है, 8 नंबर पिन है, 9 नंबर पिन है, 10 नंबर पिन है, 11 नंबर पिन है, दैट इज़ द 12 नंबर एंड दैट इज़ 13 नंबर। तो यहाँ पर आप कहें डिजिटल राइट कौन सा नंबर पिन है, 8 नंबर पिन, क्या हो जाएगा बेटा, 8 नंबर पिन इज हाई, सो यू शुड हैव टू राइट हियर 8 नंबर पिन इज हाई। नाउ डिजिटल राइट, बाकी कौन है, 9 नंबर पिन लो होगा, ये भी लो होगा, ये भी लो होगा, तो 9 इज लो, डिजिटल राइट 10 इज लो, डिजिटल राइट 11 इज लो। बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब बची ये दोनों कंडीशन हो गई, अब बची ये कंडीशन, ये कंडीशन। इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, इफ डिजिटल रीड I1 इक्वल टू digital read I1 equal to 1, yeah, that means you could write here 1 and low and something else, so you should have to write here the high, and digital read
is here, second number is what? It is low. So you should have to digital read I2 must be equal to what? Low. Then after the parenthesis will be open and saying that these two 0, 1 and 0. Now you should write here digital write 8 number pin is here low, low, high, low. It's a low. Digital read 9 number is low. Digital read 10 number pin is high, and digital read 11 number pin is low. After that you have to write down here the syntax. If digital read I1 equal to high and digital read I2 equal to high, तो अब आप क्या लिखेंगे 1010 दैट मीन्स कि यहाँ पर हाई लो, तो ये सिंटैक्स आगे लिख लीजिएगा आप लोग. एक पैरेंथेसिस इफ का क्लोज हो जाएगा बाद में और एक पैरेंथेसिस क्लोज होगा किसका? लूप का, वाइड लूप का. सो वी शुड हैव टू राइट द कोड हियर and just compile in the schematic of the Arduino. Then we will study how could you design in the hardware. So we should have to see here how could you just signify to these things. Okay, so you could see here, or conceptually you could see we are just opening the Proteus. Here you could see the Proteus is being open, and now Proteus is open here. Just select here what the component you required. We required Arduino Uno. What we required, beta? Arduino Uno as well as 2 logic state, then 2 motors, 80 mega 38p and 2 batteries. Now we should have to use here logic state selected. Now you should write here Arduino Uno. We required what? Arduino Uno R3 we have selected. Now we have to select here after the Arduino Uno. Now we select the motor. Now I'm going to select here DC motor is here. After that you have to select L293D, L293D, that is your motor driver IC. Now you should have to select here a battery. After the battery you should have to select here input unit, that's fine. Now we have to just compile here the Arduino Uno, and you could see here Arduino Uno is, and now you could attach the L293D. After that you have to attach the logic state to the 12 number and 13 number. Now you have to attach this one to 12 number and 13 number. 12 number logic state and 13 number logic state must be connected to this one, and the 8, 9 and this one, and 8 must be connected to the input number 1, 9 connected to the input number 2, and this must be connected to the input number 3, and this is going to connect with the input number 4. After that you should have to just sort this one enable and connect to the 5 volt. You could see here, and the supply unit is here, and DC supply unit we have selected here. Now we are going to connect this one and verifying the value will be 5 volt. So enabling to the value, और जो भी चीज़ें आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई जा चुकी हैं बेटा, यू शुड हैव टू गो देयर एंड जस्ट कवर टू दैट टॉपिक, क्योंकि L293D हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई है आपको एच ब्रिज के साथ. देन यू शुड हैव टू स्टडी विद द एच ब्रिज इन प्रीवियस लेक्चर. We have decided there and we have designed. Now you should have to connect to this one to the ground, and we are connecting to this to the ground. Okay, now you could see here, and we are just connecting to this one and attaching a battery. We have to select here battery. If you select the battery, you could see that this must be connected to this one, and ground we required, so we have to connect the ground. Okay, now we have to connect 2 motors, 2 DC motors for the connection. I hope कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा. Now you have to connect this one
Okay, this is connected and this one is also connected. Okay, now that must be drag and adjust to this one. Now we are going to just compile to this 9 volt. Okay, suppose we are going to just do the 9 volt and it's going to connection with the 9 volt. Now it is ready for that one. If you run this schematic, अगर हम इस schematic को रन करते हैं तो आपको क्या लगता है ये रन करेगा? No, there will be 2 error. रन टाइम सिमुलेशन स्टार्ट टू फेल एंड AVR प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड. आप देख सकते हैं यहाँ पर इफ आई विल रन दिस वन यू विल फाइंड 2 एरर्स एंड दोनों एरर का मतलब यही होता है. हियर यू कुड सी दैट AVR प्रोग्राम प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड एंड रियल टाइम सिमुलेशन फेल टू स्टार्ट. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने हेक्साडेसिमल फाइल नहीं डाली है. किसी भी कोड को, किसी भी हार्डवेयर को, किसी ऑर्डिनो को रन कराने के लिए आपको हेक्साडेसिमल फाइल की ज़रूरत पड़ती है. तो अब आप क्या करेंगे हेक्साडेसिमल फाइल के लिए? नाउ वी शुड हैव टू राइट द प्रोग्राम ऑन ऑर्डिनो एंड आफ्टर द ऑर्डिनो वी हैव टू जस्ट ओपन द ordino.cc and just write there the code, compile the code, get the hexadecimal, paste in the controller and just simulate the hardware. That will be absolutely okay. You could see here the Arduino.cc has been open. Now we have to select and just start the coding. We have to write here int i1. That means int i1 must be equal to what? You could see in the code very easily i1 is 1213 and i1 is going to 12 semicolon. There will be the integer type. i2 must be connected to the 13 number pin. And now we are going to initialize to the output and O1 you see here the O1 is going to connected with the 8 number and simultaneously we will just define and integer type O2. You could see here the O2 is going to connect with the 9 and semicolon और इसके बाद हमें integer type O3 कह देंगे. O3 connect हो जाएगा आपका 10 नंबर से. And after that we will write here integer type O4 must be connected to the what 11 number semicolon. इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? अब आपको void setup लिखना होगा. Now you write here void setup. Oh, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? void setup लिख दिया. So you should have to see here we should have to write here void setup. Okay, just open the parenthesis, close this one. अब यहाँ पर आपके सबके पिन मोड लिखने होंगे. राइट देयर द पिन मोड 12 number pin is and acting as an input, so you should have to write here input and after that you say right here pin mode what is writing here the pin mode of 13 number pin is acting like an input, so we have to write here the input. After that closing semicolon pin mode 8 number pin is acting like an output semicolon. Then as here you could see that pin mode 9 number pin acting as an output. Okay, after that pin mode 10 number will be acted as an output. Okay, so we should have to just define here that's input and output, all that out. 11 number is remain that. Now it is pin mode 11 number pin is acting here like an output. Okay, that's fine. After that we have to define the condition. You could see here we are writing here the condition if the digital read sensor number input number one is equal to what?
Input number 1 is equal to low, that is first condition is low. And now close this one, and we are writing here next condition, that is the digital read input number 2 must be equal to what? Input number 2 must be equal to low. Okay, must be equal to low. Okay, you could see here must be equal to I2 must be equal to low. Okay, so we are going to close this one, and here you could see the whole if must be closed, and there will be, you could see, if both are low and the condition is all the pins here are low, so we do have to write here digital write, open the if condition parenthesis, and write here digital write 8 number as an 8 number pin must be low, semicolon, digital write 9 number pin as what? Low. And now you could see here digital write 10 number pin is what? Low. After that we should have to write here, digital write 11 number pin is low. And the last pin is the condition, digital write 12 number pin is low. Now we have to just do this one again and again, so we should have to copy this and paste here for the condition, but we are not going to copy and paste, we will type here. You could see that as you are training to your brain, your brain will work as like, तो आप लोग प्रैक्टिस करें कि कॉपी पेस्ट की आदत ना डालें. So there will be the if you should have to write here digital read I1 must be equal to low, and digital read must be I2 must be equal to what? High. You could see in the truth table we have pre-decided with this thing, and now the whole if condition must be closed for this, and we have to start it here. तो आप लोग देखें यहाँ पर if की कंडीशन हम लोग डिसाइड करते हैं. अब देखें यहाँ पर if की कंडीशन क्या कह रहे हैं. ये कंडीशन कहती है अगर ये 0 है या 1 हो जाए तो 1 0 0 0. दैट मीन्स कि हम इस कंडीशन को यहाँ से क्या करते हैं टाइम बचाने के लिए कॉपी, एंड देयर विल बी द सॉरी, and now we should have to copy this one, and after copying and this we have to paste here. You could see here we are assigning to the value. क्या हो गया यहाँ पर 8 क्या है आपका 1 and 9 0, ये भी 0 ये भी 0, तो हम कहेंगे 8 हमारा हो जाएगा high HIGH and rest of are low. So we should have to write the next condition. The condition is if there will be digital read the I1 pin, I1 must be equal to what? Must be equal to high, and digital read your pin is I2, it's I2 equal to what?
equal to low. So what you should have to do, you should have perform like this. As we have decided, pre-decided we have. So it will just write here the code, but going to the paste. 8 number is low, 9 number is low, 10 number is high. So 8, 9 is low and 10 number pin is 8, 9, 10, 11. So what's doing here? 12 number. What's doing here? Why we have just decided a 12 number? There's no need to the 12. There's no need to tell. There is no need to the tell. Okay, and this will be the 10 number pin will be what? High. So we have to write here HIGH high. Then we have to go to the last condition. We must write here if, you must go to the right here, if digital read I1 must be equal to what? I1 must be equal to high and digital read I2 must be equal to high. What will act this one? Here that will act, open the parenthesis, 1010. Now what will be here? The 8 number pin will be high, that will be low, and that will be high, and that will be low. And after we have to close the whole loop of this one, control. So we should have to close the loop and Control R, read the program, and it should not be, we should have to just save here and write the name of this one, L29. You could see that motor driver IC, motor driver underscore, that is IC, and underscore Arduino. ऐसा नाम लिखेंगे दोबारा आपको समझ आ जाए. ओके, तो कोड को कंपाइल कर देते हैं. इफ़ एनी काइंड ऑफ एरर विल एग्जिस्ट, नाउ यू शुड हैव टू सेलेक्ट द नाइनो. वी हैव सिलेक्टेड द बोर्ड, you know, so you should have to select the board, you know. Now you will see there the code is being compiled and done compilation. कंपाइलेशन कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ यू शुड हैव टू गो टू द हेक्साडेसिमल कोड एंड सेलेक्ट टू हेक्साडेसिमल कोड. आप हेक्साडेसिमल कोड को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी कॉपी कर लें, और अब आप यहाँ पर जाएं. यहाँ पर जाने के बाद इसमें क्या करें, कंट्रोल वी पेस्ट कर दें और उसके बाद ओके कर दें. आफ्टर जस्ट डू दैट वन, अब से प्ले कराएं. अब देखिए यहाँ पर 0 0 पर 0 है, 1 0 पर आपकी 1 मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी, 0 0 पर दोनों मोटर रुक जाएंगी, एंड हियर 1 दूसरी क्लॉकवाइज घूमेगी और 0 0 दोनों रुक जाएंगी. अगर हम 1 1 कर देते हैं तो दोनों मोटर क्या होंगी, क्लॉकवाइज घूमेंगी. तो आप अपनी कंडीशन को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल. तो किसी भी कंडीशन, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए हम लोग ट्रुथ टेबल का सहारा लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं. तो जैसे अगर यहाँ पर 1 0 करें, 0 0 पर 0 कंडीशन है, 1 पर 1 घूमेगी, 1 घूमेगी, और 0 0 दोनों रुक जाएंगी, 1 1 पर दोनों घूमेंगी. तो देखिए ये सारे कंडीशन जो हम आपको बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में वायरलेसली हम ब्लूटूथ से कंट्रोल करेंगे, वाईफाई से कंट्रोल करेंगे, ये DTMF से कंट्रोल करेंगे, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करेंगे. तो आपको क्या होना चाहिए, इन सारे स्विचिंग का तरीका पता होना चाहिए. जहाँ पर लॉजिक स्टेट लगा है वहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे अरेंजमेंट लगाएंगे जिसके थ्रू, मॉड्यूल्स के थ्रू हम सिग्नल भेज के इसे क्या करेंगे, आउटपुट पे कंपाइल कराएंगे. तो सिंपल सी बात है कि आप जितना बढ़िया इसमें चीज़ें कर पा रहे होंगे उतना सही तरीके से उसमें कर ले जाएंगे. इट्स नॉट अ बिग डील. तो आप देखें कि यहाँ पर आसानी से आप कर ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बेटा. डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. ओके, तो वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. अब हमें नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. थोड़ा सा आप समझिए. रेंडमली हम लोग कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे. वी शुड हैव टू डिसाइड रेंडमली. ओके, तो अब हम लोग इंटरफेसिंग देखते हैं कि आर्डिनो को LDR से किस तरह, ULN 2003 इंटरफेसिंग देख लेते हैं.
So we should have to just decide here the interfacing of the ULN2003 IC for this one, for different kind of this. तो आप लोग देखें पहले इसे ULN2003 से कैसे हम इंटरफेस कराते हैं, तो आप लोग इसे देखते रहें और ज़रूर से नोटिस करें कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको कोड करना होगा, हार्डवेयर कंपाइल करना होगा और रेगुलरली चीज़ों को सीखते रहेंगे। डेफिनेटली यू विल बी अ डेवलपर राइट सून। तो हम लोग इसे डब कर देते हैं। आई एम जस्ट रबिंग टू दिस वन। ओके, आई हैव टू रब दिस। Okay, now we have to interface to ULN2003 IC with the Arduino. How could you interface? Suppose, अब देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पर एक Arduino का कंट्रोलर ले लिया 80 मेगा 328p, 80 मेगा 328p, जो किस में लगा हुआ है? Arduino यूनो में लगा के हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम एक आईसी ले लेते हैं, दैट विल बी द आईसी, एंड आईसी विल बी जस्ट रिलेटेड टू ULN2003. इट इज़ व्हाट से दैट रिले ड्राइवर आईसी। नाउ वी विल कनेक्ट टू दिस वन। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें कनेक्ट कराएंगे। किस तरीके से कनेक्ट कराएंगे? यू कुड सी वी विल कनेक्ट टू दिस वन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 पिन होती हैं। 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी यहाँ से 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पर ये आईसी हो गई आपकी 16 पर। अब देखें यहाँ पर करना क्या होता है, वेरी सिंपल थिंग। 9 नंबर को आप क्या कर देते हैं बेटा? कॉमन। क्या कर देंगे? कॉमन कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉमन। दैट विल बी द कॉमन पिन। और यहाँ पर जो भी इनपुट देंगे वो आपको आउटपुट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, ULN2003 आप लोग देख चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिसाइडेड टू द कॉमन एंड अब बाकी पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक सप्लाई ले लेते हैं हम लोग 9 वोल्ट की। वी हैव टू डिसाइडेड हियर द सप्लाई ±9 वोल्ट। और अब आपको रिले से जैसे इंटरफेस कराना है, तो यहाँ सिंपल होता है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल कि आप किस तरीके से इसे डील करते हैं। तो इसमें 7 इनपुट होते हैं, 7 आउटपुट होते हैं। 8 नंबर पिन को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? ग्राउंड कर देते हैं। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 आपको आउट जाएगा। तो कॉमन नंबर पे आप +9 वोल्ट दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 9 वोल्ट। और 8 नंबर को क्या करते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। अब देखिए ये होता है आपका इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, इनपुट नंबर 3, इनपुट नंबर 4, इनपुट नंबर 5, इनपुट नंबर 6, इनपुट नंबर 7। अब यहाँ पर होगा आउटपुट नंबर 1, आउटपुट नंबर 2, आउटपुट नंबर 3, आउटपुट नंबर 4, आउटपुट नंबर 5, आउटपुट नंबर 6 एंड आउटपुट नंबर 7। तो यहाँ पर ये इनपुट होते हैं और ये आउटपुट होता है। देखिए सिंपल सा कंडीशन है यहाँ पर, किस तरीके से आपको इसे सिमुलेट करना है, किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक लॉजिक स्टेट ले लिया फॉर चेक आवर लॉजिक। हमने यहाँ पर लॉजिक स्टेट ले लिया। ओके, तो लॉजिक स्टेट हमने ले लिया। तो जैसे हमने कह दिया ये है आपका 13 नंबर पर और ये है आपका 12 नंबर पर। और हम यहाँ पर ले रहे हैं 8 9 10 11। ओके, 8 9 10 एंड 11। दिस विल एक्ट एज एन आउटपुट एंड दीज 2 पिन विल एक्ट एज एन इनपुट। तो हमने ये डिसाइड कर दिया। अब हम 4 आउटपुट भी ले लेते हैं। 11 पे 1 2 3 एंड 4। तो चलिए रेंडमली हम लोग इक्वेशन बनाते हैं और रेंडमली इसको कोड करते हैं, रेंडमली आउटपुट लेते हैं। तो जैसे हमने कहा यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, अगर आप 3 आउटपुट ले लेते हैं या 4 आउटपुट ले लेते हैं, कुछ भी आप कहें। तो यहाँ पर अगर हम 4 आउटपुट लेते हैं तो आपको 4 रिले लेनी होगी। क्या लेनी होगी बेटा? 4 रिले वी हैव टू सेलेक्टेड। और इन रिले को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक लोड लगाना होगा। तो सिंपल से सबसे पहले तो हम लोग 4 आपके ले लेते हैं ये रिले 1 2 एंड 3 4। सिस्टमेटिक को ड्रॉ कर लीजिएगा बेटा आप लोग। 1 2 एंड 3 एंड दैट विल बी द 4। ओके, it is common should be connected
कॉमन शुड बी कनेक्टेड, कॉमन शुड इट हैव टू कनेक्टेड, और यहाँ पर आप सप्लाई देंगे कितना 220 वोल्ट, कितने हर्ट्ज बेटा 50 हर्ट्ज, और ये यहाँ पर फेज़ होगा, ये क्या होगा न्यूट्रल होगा। तो फाइनली आप इसको सप्लाई देंगे, दिस वन विल बी कनेक्टेड टू द 9 वोल्ट, और यहीं से आप इसको सप्लाई दे देंगे, ये आपका ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाएगा, यहीं से आप इसको सप्लाई दे दीजिए, ठीक है। और ये चला जाएगा आपके आउटपुट नंबर 1 पर, ये पिन जाएगी आपके आउटपुट नंबर 2 पर। ध्यान दीजिएगा बेटा, पे योर अटेंशन हियर, ये आपका जाएगा आउटपुट नंबर 2 पर। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपने कॉमन सबका शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पर आप ले जाएंगे इस वाले को सप्लाई पर। तो अभी आपको जब डिस्क्राइब करेंगे हम उस पर तो क्लियर हो जाएगा, इस वाले को ले जाएंगे इस पर। ये सारी चीज़ें हम स्विचिंग जो ULN 2003 की है वो हम आपको बता चुके हैं बेटा। ULN 2003 की ICs आप जानते हैं अच्छी तरीके से किस तरह स्विच करती है, तो इसी तरीके से हम इसको अटैच कर रहे हैं। फाइनली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस वाले को भी सप्लाई से अटैच करेंगे, तो यहाँ पर आप ये ले आइए सप्लाई पे, और दूसरे वाले को ले जाइए आप इस पे अप्लाई पे, यानी कि यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए 13 नंबर पे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 आउटपुट हैं तो आउटपुट निकाल लेंगे। तो फाइनली आपको जो NO मिलेगा, NO से सबके निकालिए, एक NO यहाँ पर, एक NO यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, एक लैंप यहाँ लगा दीजिए और एक लैंप यहाँ पर लगा दीजिए। हियर यू कुड, इन दोनों का न्यूट्रल शॉर्ट करिए और ले जाइए कहाँ पर, न्यूट्रल पर। इसी तरीके से इन दोनों में भी लैंप लगेगा। तो फाइनली चलिए इसके लिए हम लोग कंडीशन बना लेते हैं। वी शुड हैव टू ड्रॉ द कंडीशन, और कंडीशन के हिसाब से हमें प्रोग्राम करना होगा। स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, और यहाँ पर आप कह दीजिए कितने आउटपुट हैं, आउटपुट आर 4। तो यहाँ पर कह दीजिए आउटपुट नंबर 1, आउटपुट नंबर 2, आउटपुट नंबर 3 एंड आउटपुट नंबर 4। और देखिए हम कोड में ही इसे कंपाइल कर देंगे, कोड में ही चेंजेस करके बताएंगे। तो आउटपुट नंबर 1, आउटपुट नंबर 2 एंड आउटपुट नंबर 3 एंड आउटपुट नंबर 4। तो आप देखें किस तरीके से कंडीशन चेंज होंगी। ना वी हैव टू डिसाइडेड द कंडीशन। तो यहाँ पर कहेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके बाद हम कहेंगे मान लीजिए 0 0 कंडीशन पर स्विच नंबर आउटपुट नंबर 1 0 एंड 1 0 हो, ठीक है, 1 0 1 हो, यानी कि 0 0 पर 1 0 1 0 है, 1 हो तो ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए। इधर हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाए, यहाँ पर भी 1 हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए। अब यहाँ पर 1 1 पर सारे 0 हो जाएं। तो ये सिंपल सा हमने एल्गो बना लिया, रेंडम एल्गो। अब इस एल्गोरिथम को हमें कोड में बदलना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग कोडिंग डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रीवियस कोड आप लोग देख चुके हैं। प्रीवियस कोड हम लोगों ने क्या कर रखा है, मोटर ड्राइवर ICs का प्रीवियस कोड हम लोगों ने बना रखा है, तो उसकी हम लोग को उतने टेंशन नहीं है। नाउ वी हैव टू गो टू द प्रीवियस कोड, क्योंकि बार बार कोड नहीं चेंज करें। कोई नया कंसेप्ट अब सिखाएंगे तो आपको अभी नया कंसेप्ट जो सिखाएंगे उसमें आपको यूज़ करते हैं। देखिए हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स के बारे में, तो कोड में हम कुछ चेंजेस करेंगे। आप कोड को समझने की कोशिश करिएगा, बस प्रीवियस कोड में हम चेंजेस करेंगे बस। आप बस कोड को समझने की कोशिश करिएगा, किस तरीके से कोड अगर आपको दिया जाता है, आप किस तरीके से कोड को चेंज करके अकॉर्डिंग टू योर perspective, according to your logic, you would have to modify to the code, and this is called the code manipulation। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर वही हमने इनपुट लिए हैं 12 and 13 पर, you could see here इनपुट वही हैं, आउटपुट हमने वहीं लिए हैं, कोई इनपुट आउटपुट। तो इस लाइन में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पिन मोड का जो बिहेवियर है वो भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो लो लगा हुआ है आप इसको हटा दीजिए, और यहाँ से हम इसको भी लो को क्या कर देते हैं, यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। अब आप समझिएगा बेटा, यू शुड हैव टू पे योर अटेंशन हियर, और इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए 0 0 कहता है, 0 0 0 0 अगर हम यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगा दें, क्या लगा दें, नॉट ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब समझिएगा, तो अगर नॉट ऑपरेटर लगा दें, नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या है, सिंपली यू कुड सी हियर वी एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर नॉट ऑपरेटर। और यहाँ भी अगर क्या कर दें आप नॉट ऑपरेटर लगा दें, यू राइट हियर द नॉट ऑपरेटर, तो इसका मतलब है नॉट डिजिटल रीड I1, यानी कि 0 डिजिटल रीड होगा ही नहीं। ये भी कह रहा है नॉट डिजिटल रीड I2। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, 1 0 1 0, यानी ये क्या हो जाएगा आपका हाई, समझिएगा ध्यान से, हाई लो, और ये क्या होगा बेटा, हाई 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 लो हाई लो। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिंपली यहाँ पर कहेंगे कि ठीक है, देयर बी द कंडीशन वी शुड हैव टू राइट हियर, और यहाँ पर आप कहेंगे 0 1 है तो इसे कर दीजिए नॉट, है ना, इसे कह दीजिए नॉट, आप कह देंगे इसे नॉट।
और इसे ऐसे ही कर दीजिए। तो ऑपरेटर अपने आप ये समझ जाता है कि इसे हमें क्या करना है, रीड करना है। एंड डिजिटल रीड I2, तो ये सिंपल रीड कर रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पर 0 1 0 1 हमें उलट देना है। यहाँ पर जो हाई, ये आपका हाई लो था, उसे लो हाई करना है, यानी कि इसे क्या कर देंगे आप, लो, एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी हाई, and that will be low, and that will be high. So 11 number will be high. After that, you could see here we are applying the operator 1 0. That means we have to see here apply the not operator here. तो आप यहाँ पर नॉट ऑपरेटर जब अप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला हट गया क्लियरली, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, वेरी सिंपलेस्ट थिंग दैट इज़, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई ठीक है, इस कंडीशन में तो आपने कहा था ये 1 1 0 0 यानी लो हाई लो लो, तो दैट मीन्स इट विल बी व्हाट, it will be high, and it will be also high, it will be low, it will be low, fine। अब यहाँ पर दोनों क्या कह रहे हैं, हाई हाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी पर भी ऑपरेटर नॉट का नहीं लगाएंगे, वी विल लीव दिस वन, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द ऑपरेटर नॉट। तो यहाँ पर आप देख लें किसी पर ऑपरेटर नहीं लगा रहे हैं हम। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कह रहे हैं लो लो, सारे लो हो जा रहे हैं, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया सारे लो हो जाओ, नाउ इट्स लो एंड इट्स लो ऑल्सो इट्स लो, ओके। कंट्रोल R, रीड द प्रोग्राम, इफ any kind of error will be occur, you will find here logical operator according to the logical operator. So if there is, I think इसमें भी वही प्रॉब्लम कि हम लोगों ने void loop नहीं लिखा, so we should have to write here a void loop. Okay, the problem is there. We should have to open to next. You have to open to the desktop and new Arduino. Just you could see here we are going to just make a new program here, and now write down here void setup. After void setup we have to open the void loop, void and loop. There will be also for termination stop of this. Now we have to open this one and close this one, control R. We are just assigning the name here, operator used. Okay, at the desktop, save as. There is an error. There is any kind of error. It's a main function. In main function there is a problem. Then the void setup we have to open and close, and void loop there is opening and closing. There is, wow, it's quite good. Control C, open this one, close here, close. Now we have to open there will be control A, control V, and we have decided here void setup, void loop. Okay, control R is here. Let's run the program. Is there any problem? Yeah, board is saying that error ID return to exist, यानी कि एक सॉफ्टवेयर और आपका ओपन है, इसे मेन फंक्शन में रिटर्न हो जा रहा है। तो कंट्रोल आल्ट हम डेल के साथ जो ओपन फंक्शंस, जो ओपन सॉफ्टवेयर्स होंगे, वी शुड हैव टू चेक स्टॉप टू दैट वन। यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स आपके ओपन हैं जो जिन्हें आपको क्लोज करना होगा, इन द टास्क दे आर द एंडेड। और अब आप इसे क्या करेंगे, कंट्रोल R रीड कर लें, रीड कर लें, प्रोग्राम रीड हो जाएगा। आफ्टर रीडिंग द प्रोग्राम इट विल प्रोवाइड यू एंड error, what is the program, Arduino is here, Arduino is selected here, and it's saying that
यूज़ लैम्प इंट फंक्शन मेन फंक्शन में कह रहा है कि नायर हार्डवेयर आर्डिनो AVR 3043 नंबर पर कह रहा है अनडिफाइंड रिटर्न सेटअप void undefined function setup. Exactly here you could see here s must be small and controller that will be run to the program. तो आप एरर को पढ़ना सीखें, जानबूझ के एरर आपकी डाली जाती हैं ताकि आपको रीड करने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। कोड अगर पूरा हम सही करते हुए चले जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप कभी भी कोड करेंगे तो एरर आएंगे तो आपको एरर पढ़ने का सिनेरियो नहीं मिलेगा, आप एरर को समझ नहीं पाएंगे। इससे कोशिश करें कि जो एरर आती हैं उन पर ध्यान रखें, और यही चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराएगी। सो वी शुड हैव टू गो टू द Proteus Professional and it's going to on. Okay, it's going to on. Here we have to select that one, and after selecting to this one we will just accomplish to the switching here. Switching will be here. We have to select what Arduino Uno. We have to select it in an Arduino Uno, and now we should have to select here. After the Arduino Uno, you have to select logic state. You should have to select logic state. After selecting to the logic state, you should have to select the ULN2003. Now you could select here ULN2003. Now we require a battery also. We require a battery. We require relay. Okay, we require relay. So we should have to choose here an relay, and after that battery, relay, also we should have to an alternator and lamp. We require alternator, and after that we have required to lamp. Okay, now we should have selected the lamp. Now it's going to that absolute function here. तो अब जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद क्या करना होगा बेटा, हमको यहाँ पर ULN2003 अटैच करना होगा। ULN2003 अटैच कर दिया। ओके, ULN2003 अटैच करने के बाद आपने देखा होगा 8 नंबर को इससे अटैच कर दिया, 9 नंबर इससे, 10 नंबर इससे, एंड आफ्टर दिस वन यू कुड से 11 नंबर टू दिस वन। तो थोड़ा साफ साफ बना देते हैं, कंट्रोल Z। तो आप अगर कहें तो इस तरीके से होगा। नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, and is going to connect with 11 number. Okay, fine, that is absolutely looking a right glitch. Okay, तो यहाँ पर हमने ये कनेक्शन करा दिए। अब क्या करेंगे बेटा, रिले लगाने हैं हमको। वी हैव टू सेलेक्ट ये द रिले एंड लॉजिक स्टेट ऑल्सो वी हैव टू सेलेक्ट। तो लॉजिक स्टेट सेलेक्ट करते हैं। देयर इज़ द लॉजिक स्टेट। कितने लॉजिक स्टेट लगाने हैं बेटा, 2 लॉजिक स्टेट लगाने हैं। नाउ यू शुड हैव टू सेलेक्ट द लॉजिक स्टेट एंड अटैच टू देयर। अटैच करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, 13 नंबर, और किस पर अटैच कर रहे हैं आप, 13 नंबर यू हैव टू अटैच एंड 12 नंबर। तो आप यहाँ पर 13 नंबर पर अटैच कर दें एज वेल एज 12 नंबर पर अटैच कर दें। तो यहाँ पर देखेंगे भाई ठीक है। अब हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा रिले। क्या लेना होगा बेटा, रिले। नाउ वी शुड हैव टू सेलेक्ट एंड रिले। आफ्टर सेलेक्टिंग टू द रिले वी हैव सेलेक्टेड 4 रिले, 1 2 3 एंड 4। 4 रिले हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिए। अब देखिए बैटरी हमें लेना है। यहाँ पर कनेक्शन समझ लीजिएगा बेटा आप लोग, क्योंकि बोर्ड पर आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा। सिंपल सा इस पर समझिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपली तरीके से समझ में आ जाएगी। तो बोर्ड पर जो कॉम्प्लेक्स हुआ है उसे हम लोग आसान कर देंगे। वी विल रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्कीमेटिक वेयर यू हैव फेल्ड एट द बोर्ड। सो कॉमन को क्या करेंगे बेटा, हम सप्लाई दे देंगे। जैसे यहाँ पर सप्लाई दे दिया था हम लोगों ने, कॉमन को VCC 9 वोल्ट दे दिया था, हमने दे दिया 9 वोल्ट। अब यहाँ पर एक कॉइल यहाँ जाएगी, दूसरी कॉइल यहाँ से होते हुए यहाँ पे पहुँचेगी एंड, तीसरी कॉइल यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचा देंगे, और चौथी कॉइल आराम से यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचा देंगे। तो जितनी कॉइल थी उनका सेकेंड टर्मिनल हमने कहाँ पहुँचा दिया है,
ICs के आउटपुट पे। अब यहाँ पर एक जाएगा इस जगह पे, दूसरा यहाँ से जाएगा इस तरह से, तीसरा कनेक्ट कराना है तो यहीं से आप सीधे लाएं और तीसरा कनेक्ट करा दें। नाउ यू शुड हैव टू कनेक्ट दिस वन टू द थर्ड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएं और यू मेक द कनेक्शन। अ लिटिल बिट ग्लिच इज़ बीइंग अकर, तो यहाँ से आप लाएं और कनेक्शन ला सकते हैं आप आसानी से। प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ से आप यहाँ ला लें कनेक्शन और फिर यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएं। ओके, तो हम लोगों ने ये कनेक्ट कर दिए सारे सप्लाई पे। कितने वोल्ट है, 9 वोल्ट। तो रिले भी हमें कितने वोल्ट की करनी पड़ेगी। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ हियर द 5 वोल्ट रिले एंड दिस रिले इज़ गोइंग टू द कनेक्शन ऑफ द 5 वोल्ट रिले, दिस इज़ गोइंग टू द कनेक्ट टू द 5 वोल्ट रिले एंड दिस इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद द 5 वोल्ट रिले। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इतनी चीज़ें होने के बाद हमें क्या करना होगा, अल्टरनेटर लेना होगा। क्या लेना होगा बेटा, अल्टरनेटर। वी रिक्वायर एन अल्टरनेटर। तो यहाँ पर एक आप अल्टरनेटर ले लीजिए। अल्टरनेटर लेने के बाद इसको इससे कनेक्ट करा दीजिए, दिस विल बी कनेक्टेड टू दिस वन और दिस इज़ कनेक्ट टू द दिस वन। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, नाउ वी हैव टू कनेक्ट दिस हियर। यहाँ पर हम लोग सारे कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। अल्टरनेटर सारे कॉमन पे पहुँच चुका है। अब हमें 4 बल्ब की रिक्वायरमेंट है, हमें चारों बल्ब को क्या करना होगा, अटैच करना होगा। नाउ वी हैव टू चूज़ हियर द लैम्प, और लैम्प यहाँ पर लैम्प नंबर 1 एंड लैम्प नंबर 2, लैम्प नंबर 3 एंड लैम्प नंबर 4, ये चारों हमने कर दिया। सबके पहले कॉमन को शॉर्ट करके आप न्यूट्रल करिए। सबको क्या कर दिया हम लोगों ने, सबके कॉमन को हमने क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया। नाउ वी हैव शॉर्टेड टू दिस कॉमन एंड कनेक्टेड टू द न्यूट्रल। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, एनो को, एक एनो को नाउ वी हैव टू सेलेक्ट दिया एंड एनो इज गोइंग टू कनेक्ट विद दैट लैम्प, दिस इज गोइंग टू कनेक्ट विद दैट लैम्प एंड दिस रिले is going to connect with this lamp, okay, and this is going to, this NO is going to connect with this lamp, okay। तो हमने ये सारे कनेक्शन क्लियर कर दिए। अब चलिए देखते हैं चेक करके कि क्या लैंप हमारे ऑन होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि सप्लाई हम कितना रख देंगे बेटा, 220 वोल्ट रखेंगे। नाउ वी हैव टू डिसाइडेड द 220 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सप्लाई, द वैल्यू ऑफ द सप्लाई विल बी 50 हर्ट्ज, व्हाट विल बी 50 हर्ट्ज, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें करने के बाद अब आप क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू रन हियर the hexadecimal code should be pasted because we have copied here, we have copied the hexadecimal code। आप इस hexadecimal code को क्या कर लें, कॉपी कर लें। now shift and backspace that is going to select to this one, और इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कराएं, पेस्ट कराने के बाद ओके कर दें। ओके के बाद अब चेक करते हैं हम लोग, तो कंडीशन क्या कहती है, देखिए 0 पर 1 0 1 0, यानी 2 बल्ब हमारे अल्टरनेटिव वाले ऑन होने चाहिए। तो जब हम इसे रन कराते हैं तो देखिए आप 2 बल्ब आपके ऑन हैं, 1 0 1 0, ये वाला आपका 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, तो 1 0 1 0 को कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम स्विच नंबर 2 को अगर हम प्रेस करते हैं, यानी कि अगर इसे हम स्विच नंबर 2 आपका अटैच है, सिंपली अगर हम स्विच नंबर 2 को प्रेस कर देते हैं तो जो ऑन है वो ऑफ हो जा रहे हैं, जो ऑफ है वो क्या हो जा रहे हैं, ऑन हो जा रहे हैं। स्विच नंबर 2 दैट विल बी कनेक्टेड, तो क्या देख रहे हैं आप, जो ऑन है वो ऑफ हो गए, जो ऑफ, देखिए 0 0 था, तो 0 0 पर क्या था, 2 ऑन थे लेफ्ट साइड वाले और 2 ऑफ राइट साइड वाले थे। अगर हम 1 0 कर दे रहे हैं तो 2 लेफ्ट साइड वाले ऑफ हो गए, वो ऑन हो गए। देख सकते हैं आप किस तरीके से 1 0 1 0 कंडीशन चल रही है। अब क्या करेंगे, हम स्विच नंबर 1 को ऑन कर देंगे। तो अब आप स्विच नंबर 1 को ऑन करिए। देखिए स्विच नंबर 1 कहता है कि ये दोनों ऑन होने चाहिए, O1 और O2 ऑन होना चाहिए, बाकी दोनों 0 ऑफ हो जाना चाहिए, ऑफ है। अब हम कहेंगे अगर 1 1 कर देते हैं तो सारे ऑफ हो जाना चाहिए, तो 1 1 पर देखिए क्या है, सारे ऑफ हो गए। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ULN 2003 आपका रिले को आउटपुट के साथ क्या कर रहा है, स्विचिंग करा के कंट्रोल कर ले रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कंट्रोल होता है। अब यहाँ पर अगर आप कोई LDR सर्किट को अटैच करना चाहे, इफ़ यू वांट टू अटैच टू द LDR सर्किट यू कुड अटैच टू दैट वन। तो देखते हैं, नाउ वी हैव टू सी देयर द अटैचिंग टू द LDR सर्किट, और LDR सर्किट को हम लोग अटैच करके देख सकते हैं कि किस तरीके से होगा। ओके फाइन, तो जल्दी से LDR सर्किट की कंडीशन बना लेते हैं
और समझ लेते हैं कि LDR सर्किट को किस तरीके से हम लोग अटैच करेंगे। तो हम एक पर अटैच करेंगे, एक पर डिजिटल रहने देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसके साथ हम इनपुट को इनिशियलाइज करेंगे LM358 IC के साथ। यू कुड सी हियर वी हैव टू सेलेक्ट एन LM358, तो LM358 IC शुड बी सेलेक्टेड हियर एंड वी हैव सेलेक्टेड LM358। अब आपको एक रजिस्टर भी सेलेक्ट करना होगा, तो रजिस्टर सेलेक्ट कर दीजिए, और एक आपको पोटेंशियोमीटर लेना होगा, तो लिख दीजिए POT-HG, आप पोटेंशियोमीटर ले लीजिए। इतना करने के बाद अब देखते हैं जो भी ज़रूरत पड़ेगी ले लिया जाएगा। LM358 कंपरेटर IC आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए, नाउ यू हैव टू सेलेक्टेड हियर एंड LM358 कंपरेटर IC मिरर इमेज ले लीजिए, जिसका आउटपुट, ये आउटपुट निकल के कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, सॉरी आउटपुट निकल के इसका कहाँ जाएगा, जो 13 नंबर है इसके पास जाएगा। ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे, इसे ग्राउंड कर देंगे। नाउ वी हैव टू कनेक्टेड टू द ग्राउंड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम स्कीमेटिक को, ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पर सप्लाई 9 वोल्ट की है, तो यहाँ पर सप्लाई भी 9 वोल्ट की जाएगी, तो यहाँ से आप ले लीजिए, थोड़ा रेंज बना के लीजिए, 9 वोल्ट की सप्लाई दे दिया। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग इसे, नाउ वी शुड हैव टू सेलेक्ट हियर, और 9 वोल्ट की सप्लाई के बाद हम लोग इसमें एक पोटेंशियोमीटर लगा देंगे। तो नाउ वी हैव टू कनेक्टेड टू द POT-HG, POT-HG आप करेंगे तो यहाँ पर इसे मिरर इमेज ले लीजिए, और एक टर्मिनल को क्या करना होता है बताइए, POT-HG में एक टर्मिनल को हमें देना होता है सप्लाई और एक टर्मिनल को देना होता है आउटपुट। तो इसे हम लोग दे रहे हैं आउटपुट, और ये वाला टर्मिनल को दे देते हैं हम लोग सप्लाई 9 वोल्ट की। तो यहाँ पर 9 वोल्ट की सप्लाई मिल गई। अब हम इसे क्या करेंगे बेटा, ग्राउंड कर देंगे। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट दिस वन एंड जस्ट फॉरवर्ड टू द ग्राउंड, तो क्लियर हो जाएगा। अब इसे हम क्या कर देंगे, कुछ कम वोल्टेज करके दे रहे हैं, तो सिंपली इसे हम वोल्टेज कम कर दे रहे हैं, 30% हम कर दे रहे हैं। कुछ लोग वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए 30% कितना होगा, 9 वोल्ट की अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, जिन लोगों को ना समझ में आए दे मस्ट हैव टू गो टू अटेंड द प्रीवियस लेक्चर। तो यहाँ पर 10 किलो ओम का हम लोग रजिस्टर लगा देंगे, यहाँ आउटपुट हो जाएगा। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अब हमें LDR चाहिए। क्या चाहिए, LDR। नाउ वी शुड हैव सेलेक्ट द LDR। तो आप यहाँ पर देखें LDR वी आर गोइंग टू सेलेक्ट हियर। if you will select here in LDR, so you should have to put here a terminal is here and next terminal should be connected to the VCC। तो आप इस टर्मिनल पे आप क्या कर लेंगे, now you should have to connect to the VCC। after that you should have to connect to the रजिस्टर। आप यहाँ पर रजिस्टर को क्या करें, कनेक्ट करा दें, यहाँ पर ऐसा कनेक्ट करा देंगे, और ये ग्राउंड में जाएगा तो इसे आप क्या कर दें, ग्राउंड कर दें, और इसकी जो वैल्यू है वो आप 1 किलो ओम कर दें। कितना कर देंगे, 1 किलो ओम। ना इट इज़ कनेक्टेड टू द 1 किलो ओम। अब इतना हो गया सिंपल सा, अब ये ऑपरेट करने के लिए रेडी है। तो हम रन करा के देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर रन कराया, रन कराने पर अभी क्या है, 0-0 कंडीशन जो फाइनली हमारी 0-0 कंडीशन में चल रही थी, तो 0-0 कंडीशन 1-0-1-0। अब यहाँ पर हम इसको 1 कर रहे हैं, यानी कि 1 करेंगे तो ये दोनों जो अल्टरनेट जो आपके हैं वो ऑफ हैं, जो ऑन हो जाएंगे, ऑन है वो ऑफ हो जाएंगे। तो इस पर लाइट डालते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लाइट डाल रहे हैं, जैसे हमने लाइट डाला वैसे स्विच करके वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो वो दोनों ऑफ हो गए, दोनों ऑन हो गए। अब कब तक ऑफ रहेंगे, सिंपल सी बात है, जब तक लाइट पड़ती रहेगी। आप लाइट हटाएंगे वैसे ही क्या हो जाएंगे, वापस से स्विच करके ऑन हो जाएंगे। तो फाइनली अगर आप देखना चाहें, यू कुड सी हियर एंड आउटपुट एंड रिले, कि आउटपुट किस तरीके से आउटपुट ट्रिगर कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ें देखना चाहें तो एक यहाँ पर रजिस्टर लगा दीजिए। रजिस्टर लगाने के बाद इस रजिस्टर की वैल्यू कर दीजिए 220 ओम। 220 ओम यू हैव टू डिसाइडेड, और एक LED लगा दीजिए येलो कलर की या रेड कलर की। तो आप कहें LED सिलेक्ट टू द येलो कलर, तो हम LED येलो कलर की ले लेते हैं और इसे यहाँ पर अटैच कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए जैसे ही IC स्विच करे। और यहाँ पर हम ग्राउंड अटैच कर देते हैं। नाउ आई एम अटैचिंग टू द ग्राउंड, यह ग्राउंड अटैच कर दिया। अब फाइनली आप क्या करें, रन कराएं। रन कराने के बाद देखें 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आप IC ले आएंगे स्विच कर जाएगा, स्विच करेगा, देखिए आउटपुट जनरेट हुआ, आउटपुट जनरेट हुआ। यहाँ पर वो अपना काम करके स्विच करके 2 को ऑफ कर देगा, 2 को ऑन कर देगा। फाइनली जब इस पे से आप आउटपुट को हटाएंगे तो आउटपुट हटाने पर क्या हो रहा है, स्विच करके आउटपुट दे रहा है। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपलेस्ट थिंग यू शुड हैव टू सी हियर। It's absolutely the compilation of the input of IC। तो यहाँ पर 2 IC यूज़ की गई, LM358 कंपरेटर IC with the LDR switching as well as ULN2003 रिले ड्राइवर IC with the Arduino switching। तो ये पूरा सिनेरियो है जिसके हिसाब से धीरे धीरे हम लोग आप चीज़ों को समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, सो वी शुड हैव टू स्टडी लेस हियर। और नेक्स्ट चीज कुछ टॉपिक्स को हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होनी है। जितना मैंने इस पर काम किया है मैं हार्डवेयर पे करूँगा। हार्डवेयर करने के बाद I will show you how could you just connect to the connection in the hardware, then you will feel that how could you merge to the hardware. Okay, see you.
सी यू टुमारो बेटा। और 11 बजे से जो क्लास होने वाली है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, यू मस्ट हैव टू अटेंड दैट क्लास रेगुलरली, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू विद द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द लर्निंग एंड विद द पॉइंट ऑफ योर टेक्निकल एनहांसमेंट। तो आप इस चीज़ों को समझें, सीखें, जानें और आगे बढ़ें। थैंक यू टू बी हियर बेटा, और रेगुलरली का अटेंड करते रहें, नोट्स बनाते रहें, दीज थिंग्स विल बी गोइंग टू द काउंटेबल, तो आप लोग ये चीज़ें करते रहें अपने तरफ से। ओके, थैंक यू टू बी प्रेजेंट बेटा। ओके।